بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں. ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، السلام علیکم دوستو، اس بیان کو پورا ضرور سنیں. یہ پنجاب کے شاہی امام کا بیان ہے مدرسوں میں بیان ہے، تو اس بیان کو لازمی سنیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. تو چلیے سنتے ہیں. رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے. رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، صبح شام کے قاعدے قانون بدل جاتے ہیں. رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے. اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں. جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے. کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. مردوں میں بھی ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہیں. 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں. ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا. ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے. ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی. کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں. ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں. اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں. کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے. جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت. چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں. آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی. فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. پھنس گئے بہت سارے لوگ. کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے. ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے
वली बने नजर आते हैं, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, अपने माँ बाप के पांव नहीं दबाते। एक साहब थे बड़े मामूली से दीनदार, और जो दुआ करते थे कबूल हो जाती थी, और हालांकि कई गुनाह भी करते ने। तो बड़े हैरान हुए इमाम साहब, पूछने लगे तू करता ऐसा क्या है? कहता मैंने तो आज तक ये देखा है कि जो भी मांगा है वो कबूल हो जाता है। कहाँ जाके मांगता है? तू नमाज पढ़ता है, निकल जाता है, कोई लंबी दुआएं नहीं मांगता। कहता रोज रात को जब घर जाता हूँ ना, अपने बाप के इत्मीनान से बहुत देर पांव दबाता हूँ, फिर अपनी माँ के पैर दबाता हूँ, फिर उनके दोनों पांव को अपनी बाजुओं में लपेट के सर रख देता हूँ अल्लाह ताला की हुजूर, और फिर मैंने आज तक अपने माँ बाप के कदमों में सर रख के अपने अल्लाह के आगे जो कुछ मांगा है वो आता हुआ है। आज तक कोई दुआ रद्द नहीं हुई है। खुद प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी अम्मी जिंदा होती और बिलाल तकबीर कहते मैं नमाज के लिए चला जाता, मुसल्ले पे खड़ा हो जाता, और फरमाया मेरी वालिदा आवाज मारती मोहम्मद, तो फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास जाता। अब जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं, रमजान में भी कितना खूबसूरत मौका है, कितने प्यारे दिन हैं, कितनी प्यारी रातें, कितना प्यारा साथ है। और अब तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी करवा दी कि यही जो व्हाट्सएप है, यही जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, अगर माँ बाप दूर भी हैं तो माफी के चंद जुमले नदामत के आंसुओं के साथ व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजने हैं। चंद बातें फोन पे अपनी माँ से करनी है, अपने बाप से करनी है। और माँ बाप में अल्लाह ने माता रखा है माफ करने का। अगर रोजेदार अपने वालिदैन को राजी कर लेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका रोजा कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने माँ बाप को सताया बहुत है ना, और माँ बाप चले गए दुनिया में से, बड़ी बदतमीजियां की माँ बाप के साथ, रोजाना हर एक नमाज के बाद, रोजाना सुबह को, दोपहर को, शाम को, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त कसरत से अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं मांगे, कसरत से अपने माँ बाप के लिए कुरान पाक पढ़ के उनको इसाले सवाब करें, तब भी अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएंगे। जब आप बार बार अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआएं मांगेंगे बगैर माँ बाप की रजामंदी के, ये रोजा आगे चलने वाला है नहीं। अब तीसरा बंदा भी है भाई, तीसरा बंदा भी है जिसका काम फंसा हुआ है। एक और है जिसका रोजा कबूल नहीं हो रहा। कौन है भाई तीसरा बंदा? कौन फंस गया? अब तीसरा बंदा वो है जो रिश्तेदारियों में दरार डालता है, जो सुबह शाम रिश्तेदारियां तोड़ता है, जो रिश्तेदारों को धमकियां देता है, जो कता रहमी करता है, जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कराबतदार बनाया हो। सुबह शाम सिर्फ उन्हीं की बुराइयां, सुबह शाम एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से लड़ाता है, सुबह शाम अपने पास से एक ख्वाब बनाता है कि वो रिश्तेदार मेरे खिलाफ ऐसा कर रहा होगा, फिर दूसरे को बताता है कि उसके खिलाफ ये करो। ये सारा दिन रोजा रखता रहे, नमाज पढ़ता रहे, सदके देता रहे, जब तक कता रहमी के मामले के अंदर रसूलुल्लाह की पैरवी इख्तियार नहीं करता, रिश्तेदारों में दरार डालनी बंद नहीं करता, तब तक इसका रोजा कबूल होने वाला है नहीं है। असी तो समझा कि नहीं सवेर नू सहरी करनी है बेहतरीन, और शाम नू वधिया रोजा खोलना, हो गया रोजा। बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, इतना आसान भी नहीं है मुसलमान होना। आला तरीन कौम है दुनिया की, इस्लाम आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इज्जतें, ताकतें, दौलत, रुए जमीन के खित्ते, सब कुछ इस कौम को अता फरमाया। ऐसे ही नहीं अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को साहिब खुल्के अजीम बनाया। कुरान ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप इखलाक में सबसे आला हैं, और फिर रसूलुल्लाह ने अपने इखलाक को बांटा पूरी कायनात के अंदर। ये उम्मत आला तरीन उम्मत इसलिए बनी क्योंकि इनका किरदार सबसे आला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पसंद फरमाया है। चौथा बंदा भी है, चौथा तो बहुत बुरा फंसा हुआ है, कईयों की गाड़ी वहीं रुकी हुई है। चौथा भी है जिसका रोजा खराब हो रहा है, जिसके रोजे के अंदर खराबी है, जिसकी मगफिरत का फैसला नहीं होने वाला, जिसके सजदे कबूल नहीं हो रहे। चौथा कौन है या अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं चौथा कौन है या रसूलुल्लाह? कौन है ऐसा बंदा? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, एक रिश्तेदारियां तोड़ने वाला भी है, कता रहमी करने वाला भी है।
शराब पीने वाला भी है। अब ये चौथा कौन फंस गया? अच्छे अच्छे नमाजी हैं जो इसमें शामिल हैं। फरमाया चौथा बंदा वो है जो अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है, कीना रखता है, दूसरों के लिए बिला वजह नफरत दिल में रखता है। अब ये नफरत रख के सजदा कर रहा है। अगर मेरी जेब में, आम मिसाल दे रहा हूं मैं, ये कोई कुरान हदीस में नहीं है, अगर मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे हो, ज्यादा सजदा करूंगा गिर जाएंगे। अगर ऊपर वाली जेब में नौज़ुबिल्लाह कोई नशे की चीज हो तो सजदा करूंगा, वही गिरेगी ना नीचे। क्या है इस दिल के अंदर जो सजदा करते हो? फरमाया बुग़्ज़ रखते हो दूसरों से। दोनों सूरतों में, चुगली को, गीबत को, बहतान को, एक ही कैटेगरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा। मान लिया कि वो बंदा शराबी है, मान लिया कि उस बंदे में खराबी है, मान लिया चोर है, डाकू है, याश है, बदमाश है, लेकिन अगर ये बात तुम उसके मुंह पे कहते हो, उसको बुरा लगता कि नहीं लगता? बुरा लगता, वो तुमसे लड़ पड़ता। तुम मुंह पे इसलिए नहीं कहते कि मुंह पे कहूंगा तो ये लड़ पड़ेगा। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर ये अपने भाई की ग़ीबत करता है, उसमें बुराई है, तो बुराई को भी बयान करना फरमाया मना है। और अगर उसमें बुराई नहीं है, तुम कहते हो कि चोर है, वो चोर नहीं है, तुम कहते हो बेईमान है, वो बेईमान नहीं है, तुम कहते हो रियाकार है, वो रियाकार नहीं है, तुम कहते हो ज़ानी है, वो ज़ानी नहीं है। अगर तुम अपने पास से भी इल्जाम लगाते हो, पहली सूरत में ग़ीबत है, अगर उसमें गुनाह है तो ग़ीबत का गुनाह, और अगर उसमें वो गुनाह नहीं है तो बहतान का गुनाह। अब चुगलियां करने वाले भी खुदा की हुजूर बख्शे जाएंगे क्या? अब बेईमानियां करने वाले भी रोजे में बख्शे जाएंगे क्या? जिनके दिल गीबत से भरे हुए हों, जो घरों के अंदर अपने घरों में अपने बच्चों के साथ नफरत रखते हो, जो मस्जिद में आते हो फिर भी प्रधान जी के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचने की फिक्र में रहते हो, जो ये सोचते हो कि फलां की खामी कैसे निकालें, जो 24 घंटे इसी चक्कर में, अब किसी घर में कोई बहू है, किसी की बेटी बहू बन के आ गई, हमारी कहीं चली गई, हम कहते हैं दामाद अच्छा हो जाए लेकिन हमारा बेटा अच्छा ना बने अपनी बीवी के लिए।